Hello, viewers. I am your host Sama once again, and this time with the 12th episode of podcast Sports Painter, the cricket version of Sports Painter podcast. So, recently we have all been so busy with stuff, especially our personal lives, that we haven't been able to cover a lot of cricket. And in between, we had the Pakistan versus Bangladesh series, and we weren't able to cover that, and we are sorry for that. But now we are back once again in the groove. So with me, I have the usual set of panelists. On the top left, we have with us Namra, and on bottom we have You. Faraz. And also, Namra has recently moved to UK for pursuing a master's degree. So she is now Hence the jacket and the hoodie. the Manchester weather, the ever-changing Manchester weather. But here she is settled now once again. So let's just get back towards cricket and rest of the sports. So recently we had this Champions Cup in Pakistan, 50 over Champions Cup that was held. It was based on five teams. And in the end, the Panthers, or the team led by Shadab Khan and the mentor, Saklan Mushtaq, they were able to win this cup. So we didn't do any preview meeting or preview podcast or any during the tournament podcast, but there was a lot of scrutiny regarding the mentors or the actual Hmm. of the Champions Cup itself. So we didn't delve deeper And the into pay scale for the mentors. detail for the mentors. So we will now briefly have a quick review of the tournament itself, and we'll talk about that what the tournament was able to give us give us in terms of actual output and some of the stats like the best bowlers and the best batsmen. So let's start up with you, Namra. So talking about the tournament itself, क्या लगता है आपको इस टूर्नामेंट से हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या ये करवाने का फायदा भी था कि ऐसे ही बस टाइम ही ज़ाया किया हमने? Honestly, I think it's not it's like we discovered like a whole lot of talent. I personally think it was a waste of money, in my opinion. ठीक है, especially the fact that we had mentors with an insanely high pay scale, like पता नहीं 6.7 million USD के equivalent ये mentors की जो है salaries combine करके हो रही है 6.7 million USD. This is beyond like and my comprehension के आपने एक 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 डोमेस्टिक कप के मेंटोर्स, ठीक है, लाइक उनको इतने क्यों, किस बेसिस पे? और अच्छा, आप दे रहे हैं उनको तो आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे क्वांटिफाई कर रहे हो? लाइक आर दे जस्टिफाइंग द पे दैट दे आर बीइंग दे हैव बीन रिसीविंग? मतलब कि मुझे तो पहले इसी चीज से शुरू से इशू था, ठीक है। ठीक तो है। अगर दैट मेरा एक सवाल था जो मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू से लगा था। क्या सकलैन मुश्ताक ने कहा था मुझे उसी टीम का मेंटर होना है जहाँ पे मेरा सन इन लॉ है? इसके बारे में फराज बता सकते हैं, इनको 100% नहीं, आइडिया नहीं, ये तो मैं आप मुझे इस बात का नहीं पता। है। हो सकता है कि उसने डिमांड की हो कि भाई जहाँ मेरा दिमाग है मैं वहीं पे मेंटोरशिप करूँ। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ये ख्याल ऐसा ऐसे होगा। आई थिंक रैंडमली ऑन वो तो मार्खोर का मिसबा है ना, एज फार एज आई नो। जब मार्कोर का मिसबा था, पैंथर्स के ये थे हाँ, क्या कहते हैं, सकलैन स्टैलियंस सकता है। शोएब वाज मलिक। शोएब शोएब मलिक। मलिक। और डॉल्फिन्स का आई गेस वो थे सरफराज। हाँ, और हाँ, लायंस का वकार यूनिस। अच्छा, बल्कि वकायत वो तो मुझे लाइंस याद आ गई, ऑस्ट्रेलिया। काफी जो हमारे थे ना लाइंस मेंटोर्स, ये मेरे ख्याल से हाँ। शोएब मलिक और ये सरफराज, इनका प्लेइंग रोल भी था इनिशियली। आई एम नॉट श्योर सरफराज ने कितने मैच खेले हैं। आई थिंक पहला हाँ, है क्या। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई यार कि मतलब आप एज ए मेंटोर भी हो इसके अंदर, ठीक है, साथ में आपकी प्लेइंग एस्पिरेशंस भी हैं, तो मतलब कोई ये एक वैसे ही चीज़ समझ नहीं आती है। मेंटोर तो मेंटोर होता है ना, हाउ कैन अ मेंटोर प्ले? ये तो वहाबियास वाली हरकत नहीं हो गई कि वो मैंने मिनिस्टर भी लगे हुए हैं और लीग भी खेल रहे हैं। सही सबका जो है ना यहाँ चला हुआ था। नहीं, मुझे समझ इस बात से नहीं आ रही कि चलो ठीक है, एज अ मेंटोर आप आए हो इसके अंदर, अब एज अ मेंटोर आप सबको तभी मेंटोर कर सकते हो जब आप बाहर से बैठ के गेम को देख रहे हो, ठीक है, हम्म। उसको आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ सुधारना चाहिए, ठीक है। तो वो आप जब तक बाहर से बैठ के देखोगे नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो? और बीच में आपको है कि मैं खुद भी खेल लूँ, ठीक है। हम्म। तो फ्रॉम योर फेलो प्लेयर्स परस्पेक्टिव, मतलब आप गेम कर रहे हो, ठीक है, लेट्स इन केस ऑफ सरफराज, पीछे जो है ना आपका विकेट कीपर खड़ा है, ठीक है, और वो आपका मेंटोर भी है। तो भाई कहीं ना कहीं तो आप सोचोगे ना यार, मैंने अगर कुछ वो कह लो कि वाइड करवा दी, सरफराज से नहीं पकड़ी हम्म। गई,
ठीक है, अब यही मेंटोर है, ये तो निकाल देगा कल को टीम से, ठीक है, या इन्फ्लुएंस करेगा। तो फरहाद, आपका क्या ख्याल है, मतलब अगर हम फेलो प्लेयर्स के परस्पेक्टिव से सोचें, बाकी टीम्स के बाकी प्लेयर्स के परस्पेक्टिव से, कि देयर इज समवन हु इज आवर मेंटोर एज वेल एंड इज आल्सो प्लेइंग विद अस, तो क्या सोचते होंगे इस बारे में? हाँ, ये क्वेश्चन काफी ऑड ही था, बिकॉज या तो सरफराज खुद ही रिटायर हो जाए, वो रिटायर भी नहीं होते वाइट बॉल क्रिकेट से। बट और उन्हें और डिसीजन ही था, और एज अ प्लेयर भी आई गेस कॉन्फ्लिक्टेड एक प्लेयर रहता होगा कि ये मेरे मेंटोर भी हैं और फिर प्लेइंग साइड में भी हैं। बट आई बिलीव उन्होंने कुछ मैचेस नहीं भी खेले। मैं ऑनेस्टली मैंने सारे टूर्नामेंट नहीं खेले, मैंने उनके मैच हाँ देखा। उस तरह फॉलो नहीं किया। बट वो आपकी लेकिन आप बात किसी ठीक है। किसी हकदार प्लेयर का की स्पेस तो ले रहे हो ना आप। डेफिनेटली, डेफिनेटली। I जी। mean, you're getting paid to play as well as for being a mentor. That's just unfair to another player who could have played instead of him. यस। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और बाय द वे, सरफराज की टीम ने बिल्कुल लास्ट से फिनिश किया है। ये सिर्फ एक Yeah. किंग और 3 मैच हारे हैं, और रन रेट भी इनका -1.5। आई एम नॉट श्योर अच्छा। इन्होंने पॉइंट्स कैलकुलेशन किस तरह की हुई है, किस बेसिस के ऊपर, लेकिन दे हैव द वर्स्ट वर्स्ट record। टॉप पे आपके मार्कोस रहे हैं विद 38 पॉइंट्स और नेट रन रेट ऑफ 1.715 पॉजिटिव। Markhor was sort of going undefeated-ish, हम्म। right? यस, यस। हम्म। ये this is sadly because Markhor के कैप्टन आपके रिजवान थे। तो ये जो बैड लक उनकी चलती है हमेशा, फाइनल में जाके जो है ना, एक दे गो अनडिफीटेड एंड देन फाइनल में दे सॉर्ट ऑफ लाइक चोक। लेकिन इस फाइनल में आपके रिजवान खेल भी नहीं रहे थे। हाँ, ये एक और ये हाँ, टॉप भी तो पॉइंट है है, ना, मतलब आप ये पीछे एक और हार पॉइंट है। पुल कर लिए हार थे एज इतने बस सारे। कैप्टनिंग दी फाइनल आपके जो है, यहाँ पे भी तो काम खराब हो गया था ना फिर। अच्छा, वो ऐसा था कि जितने लोग वो सिलेक्ट हुए ना प्लेयर्स ये इंग्लैंड सीरीज के लिए, उनको पीसीबी ने मिडवे थ्रू टूर्नामेंट पुल पुल अप कर लिया था। तो ये हाँ। बिल्कुल पॉइंट है कि ठीक है, आप एक टूर्नामेंट करवा रहे हो, सही है, प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं, लेकिन मिडवे थ्रू आपने उनको पुल अप कर लिया है। तो इसमें चले तो चले गए, ठीक है, ये टीम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, बाबर चला गया, रिजवान चला गया, शहीन ड्रॉप्ड ऑफ, सही है। लेकिन जो हम्म। बाकी प्लेयर अभी खेल रहे हैं उस टूर्नामेंट के अंदर, उनको तो पता चल गया ना कि यार अब हम ये टूर्नामेंट ही खेल रहे हैं, सिलेक्शन तो अब होगी जिनकी होनी थी, हम्म। टेक्निकली हम तो रेस से बाहर हैं। ठीक है, तो उनकी मोटिवेशन लेवल किस तरह इफेक्ट हुआ होगा, मतलब इस सिलेक्शन के थ्रू। वंस अगेन दिस वाज अ वेरी absurd, या कह लो कि वियर्ड सॉर्ट ऑफ टैक्टिक या आइडिया है पीसीबी। ठीक है, हम्म। मैं अगर हूँ तो मैं तो कभी नहीं करूँ कि मतलब मिडवे थ्रू टूर्नामेंट मैं प्लेयर्स की निकलवा लूं, हाँ हाँ। निकलवा लूं। क्योंकि इससे जो निकल रहे हैं, चलो उनको तो इतना फर्क बेशक ना पड़े, वो छोड़ दें, लेकिन जो पीछे हैं उनको तो डेफिनेटली पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सोचें पर सिलेक्शन तो होगी जिनकी होनी थी। तो अब मैं टूर्नामेंट क्यों खेल रहा हूँ, मुझे ये खेलने का क्या फायदा है? एग्जैक्टली जब हाफ वे थ्रू से ज्यादा तो हो चुका है, बस एक मेरी वो कर है। हम्म। अच्छा, इसमें हम मोस्ट विकेट्स पे आते हैं। अच्छा, हसनैन लुक्स लाइक ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। आई हर्ड ही गॉट हिमसेल्फ लाइक एन ओवरसीज या कोच और या समथिंग। या सो हाँ, अपने आफ्टर एक्सपेंस पे। हाँ। went to UK and he had some personal trainer out there for bowling training. अच्छा, तो आई गेस मे बी ही हैज बीन जेन्युइनली पुटिंग इन एन एफर्ट बिकॉज दोज आर सम डिसेंट स्टार्ट्स। नहीं दे। ठीक है। So as far as the stand is concerned, I genuinely believe that these are exceptional stats. I mean, in the 6 matches he played, he got 17 wickets with an हाँ। average of 16.17. So And this I'm is, surprised at Jahadat Khan because I think Jahadat Khan can prove to be a good all-rounder for us in the yes. future. हाँ, क्योंकि पीएसएल में भी ही showed us some good promise। और इधर भी आपके देखें इसके स्टैट्स अच्छे हैं, मतलब कि this is some decent bowling from him। Also, he performed as a batsman as well in the tournament. इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस एज इसके अ पुल अप कर सकते हैं जरा स्टैट्स बैटिंग के। बैटिंग के पुल अप कर लेता हूँ मैं। तो ये बस बैटिंग स्टैट्स हैं। इसमें ऑब्वियसली टॉप पे उस्मान खान है, हम्म। आपके कामरान गुलाम है। इनमें जहानदाद खान टॉप के अंदर तो नहीं है, एज इनके टॉप 10 बैट्समैन तो नहीं, लेकिन बट he's ही डिड पुट got a अप couple सम of रन्स good एज फार meaningful एज। runs, because obviously he's batting at around 6 or 7। इरफान हम्म। खान का क्या सीन है? इरफान खान ना, मैं ऐसे ही स्पिन चेक कर रही थी तो फैंस ने इरफान खान को वोट किया हुआ था हाई अप।
अच्छा वो इसलिए उसने क्योंकि एक सेंचुरी मारी थी काफी। जो हाँ, 100 आई नॉट आउट गेस। इसने स्कोर किया ना, ये दैट एंड वाज द प्लस ही इज न्यू, शायद इसलिए। न्यू का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से परफॉर्म तो कर चुके हैं कुछ सीरीज के अंदर, लेकिन मेजर इट वाज बिकॉज कि इन्होंने एक वो एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली है 100 रन की, 100 रन की हम्म। इनिंग्स। हम्म। और आपको तो पता है पाकिस्तान में कोई एक इस तरह की इनिंग्स खेल जाए तो उसको उसके बाद आगे तो वो स्टार प्लेयर बन जाता है ना। हाँ। बाकी कुछ हो या ना हो। तो अगर अच्छा, इसमें उस्मान खान खेलते हैं, लेकिन उस्मान खान इंटरनेशनल में आके जो है वो दिखाते नहीं है हमें कुछ। अच्छा ये ना, ये आपने बात अब कर दी है नम्रा। अच्छा जितने भी सारे प्लेयर्स हैं ना सारे, ये चले इन्होंने ये 111 हाईएस्ट हैं उस्मान खान के, काम हाँ। काम को 15 है, तैयब ताहिर के 109। या। इवन साइमन यूब ने 156 किया हुआ, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल था टूर्नामेंट का जो साइमन हम्म। किया है। तो अब ये सारे स्कोर तो हो रहे थे, लेकिन जब मैं स्टैट्स देख रहा था मैंने कहा यार ये सारे यहाँ परफॉर्म कर देंगे, करवाने को इनसे 200 भी करवा लो ठीक है। लेकिन जब यही लोग आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो वहां पे आके लग रहा होता है कि पता नहीं, ये पता नहीं एकदम उठा लिए हैं प्लेयर्स, इन्होंने कभी खेला ही नहीं है। क्या क्या आपको क्या लगता है, इज इट बिकॉज कि हम लाइक डिफरेंट पिच को कैटर करने करके प्रैक्टिस नहीं डोमेस्टिक में कराते, या हमारे पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि बैट्समैन जो है फिर बेटर बॉलर्स के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते। आई थिंक देयर आर लाइक मल्टीपल अंडरलाइंग इश्यूज जो कि जिसकी वजह से जो है। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सब फैक्टर ही है। पिचेस का भी है, और फिर कंपटीशन लेवल जो हमारे डोमेस्टिक को टूर्नामेंट जैसे ये भी हुआ है, उस बस इतना कंपटीशन लेवल नहीं है, जिसकी वजह से फिर गैप बहुत ज्यादा फील होता है जब ये इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट compete करते हैं। हाँ। अब आई डोंट नो, आई समबडी आई नो, उसका भाई इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब कि वो अपने जहां भी वो खेलता है, तो जब पीसीबी वगैरह आती है, मतलब कि वो कैंप लगवाती है, तो दे एंडेड अप टेकिंग एन एवरेज प्लेयर बिकॉज ही हैड सम कनेक्शंस बैकिंग हिम, ठीक है ना। और जो ज्यादा नंबर वन और नंबर टू पे इतने लड़के कोई थे, वो उनको नहीं चांस आगे मिला। तो मतलब कि लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब कि बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग होंगे जो इसी रीजन के बेसिस पे आगे आए इस होंगे कि उनकी बैकिंग होगी। हाँ, कुछ प्लेयर्स डेफिनेटली हमने डीपली इतना देखा नहीं, बट का मिस आउट इस वजह से किए होंगे कि उनके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं होंगे। मेंटोर या जो भी कोचिंग स्टाफ इनका हर टीम का है। और कुछ जाहिर प्लेयर्स को तो इन्होंने डोमेस्टिक में फिटनेस भी फिटनेस जाहिर है। टेस्ट पे भी कर दिया था फेल। जी जी जी। तो फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट तो नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना हमारे पास। ये और जो बस उसकी सर्टेन ये नहीं फैंस है आती वो कहते समझ, हैं फिटनेस टेस्ट का क्या खेलना आना चाहिए। हाँ। समझ ये नहीं आती कि मतलब कभी ये बिल्कुल ही फोकस नहीं करते फिटनेस के ऊपर, फिर एकदम इनको कुछ होता है कहते हैं कि अब कुछ हम होता है, सारे हाँ। फिटनेस की बेस पे। फिर एकदम से सब फिटनेस टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा इनमें से ना अगर हम देखें तो जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे नंबर, आपने बात की थी कि यही प्लेयर्स आकर इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ना इनकी एवरेजेस, चले जिन्होंने 4 मैचेस खेले उनको तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इन्होंने सैंपल साइज हम कहते हम्म। हैं कि कम था। 6 में से 6 ये उस्मान और कामरान गुलाम, हाँ। 4 की एवरेज पे खेला है ठीक है। तैयब ताहिर ने 5 मैच खेले हैं 49 की एवरेज पे, कामरान गुलाम ने 41.66 की एवरेज के ऊपर खेला है। और बाय द वे कामरान गुलाम ने पता नहीं पहले 2 मैचेस के अंदर दोनों में सेंचुरीज की हैं, सेंचुरी और फिर एक हाफ हम्म। सेंचुरी। तो अच्छा। इनको लगता है पता नहीं कोई 300 क्रॉस कर जाएंगे रन्स के अंदर। हम्म। तो ये इनकी आखिरी मैचेस में जाके जरा एवरेज कम हुई है, लेकिन स्टिल इट्स अबव 41.66। हाँ, ये इनमें 200 की हुई हैं, 2 सेंचुरीज की दो हुई। हंड्रेड कामरान गुलाम, यस। एंड सिमिलरली हमारे ये स्टार ओपनर साइम अयूब, इन्होंने भी 45 की एवरेज के ऊपर खेला हुआ है और 105 का स्ट्राइक रेट है। तो बात अब यही है कि अगर हमने स्टैट्स देखे ना तो स्टैट्स तो ये बियॉन्ड एक्सेप्शनल हैं, एटलीस्ट अप अंटिल आगा सलमान, सही है। तो इस पर तो हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन मसला सारा वहीं पे आता है कि जब यही प्लेयर्स आगे आते हैं, इनमें से चले उस्मान खान को तो मैं नहीं कह इसने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन चले कामरान गुलाम और तैयब तारिक को हम कहते हैं कि इनको चांसेस नहीं मिले। लेकिन हाँ, साइम अयूब, आगा सलमान, इमामुल हक, आगा फिर भी खेले थे, बस साइम हैज बीन डिसअपॉइंटिंग मी, इवन दो ये वाहिद प्लेयर है जिसको कंसिस्टेंटली चांसेस मिल बहुत रहे हैं। ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं इनको, वी बहुत आर ज़्यादा। नॉट सिटिंग हिम आउट, होता है ना यूजुअली कि एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, 1-2 मैचेस के हम उसे बाहर कर देते हैं। बट साइम अयूब इज वन प्लेयर जिसको कंसिस्टेंटली हम हर मैच खिला रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आई, बॉय हैज ग्रेट पोटेंशियल बट आई डोंट थिंक ही इज बीन वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। कहीं ना कहीं लैग नज़र आ रहा है, मतलब वो
वो जो इनकी वो नहीं है शॉट, वो पता नहीं नो लुक शॉट जो मारते नो हैं, लुक था। हाँ। अब तो मुझे वो देखते हुए तब चढ़ती है कि भाई खुदा का मारता है। आई थिंक हमने वो नो लुक शॉट इतनी वो उठा ली थी कि अब जो है हाँ। भाई जो है वो उससे नीचे ही नहीं आते। मतलब तुम एस्थेटिक्स को छोड़ दो, पहले क्रिकेट तो खेल लो यार, हाँ मतलब सिंपल क्रिकेट खेल लो, उसके बाद इन चीज़ों पे आ जाएंगे। साल हुए टीम के अंदर आए हुए और मतलब अभी से शोधियां मारनी शुरू कर दी हैं। और ये हाँ। हमारे इफ्तिखार साहब भी हैं, ठीक है, बल्कि इफ्तिखार अहमद साहब। कैलेंडर। इफ्तिखार साहब वैसे कब रिटायर होंगे? मेरा इनसे कसम से यही सवाल था कि चाचू इनकी सबसे रिटायर ज्यादा हो गए उम्र, तो साड़ी ये जान अभी तक दोगे, खुदा का जिंदान है, वास्ता है। अच्छा इनको इन्होंने ना सरफराज से पहले रिटायर हो जाना चाहिए। इधर रिटायरमेंट का रिवाज नहीं है असल में, यहाँ लोग रिटायर नहीं होते। आपको पता है, जब तक जलील और खुमार ना हो जाए तो तभी जो है ना करना है। आई थिंक नोबडी, हमारे उसमें कोई ग्रेसफुली रिटायर होने की कोई नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम कोई ग्रेसफुली रिटायर हुआ था बस प्रोबेबली इमरान खान, जिसने अपनी पीक पे जाके रिटायरमेंट ले ली थी, एज फार एज आई रिमेम्बर। उसके अलावा मेरे ख्याल से आई डोंट नो ऑफ एनीवन जिसने कहा हो कि अच्छा अब वेल एंड गुड फॉर मी कि दिस इज द पीक एंड आई शुड लाइक जस्ट लीव। हाँ। अच्छा इफ्तिखार अहमद ने जो है स्पेसिफिकली फाइनल मैच हारने के बाद इन्होंने मार्को की कैप्टनसी की है फाइनल मैच के अंदर इन द एब्सेंस हाँ ऑफ। हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो पहली बात तो ये कि फाइनल का स्कोर इनका था 125 टोटल था, ठीक है, एग्जैक्टली। मार्कोस, और 125 उन्होंने कर लिया था इन रिस्पॉन्स पे पैंथर हाँ 122 ओवर्स। था ना। हाँ जी, तो उन्होंने अचीव कर लिया था विद इन 18 ओवर्स, तो इट हाँ वाज अ प्रीटी वन साइडेड, हेवीली वन वन, साइडेड, ठीक आई है, थिंक सिर्फ पांच, चार या पांच विकेटें उनकी गई चार थी। या हाँ। पांच हम्म। विकेटें। तो उसके बाद हाँ। चाचू जी इंटरव्यू के अंदर आए हैं और वहां पे आके इन्होंने जर्नलिस्ट से कहा है कि आप लोग एक परफॉर्मेंस के बाद जो है ना प्लेयर को चांद पे चढ़ा देते हैं, सही है, ये आप लोगों की गलती है, इस तरह करके सारा ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। दिल कर रहा था कि भाई आप पहले अपने ग्रेबा में झांक के देखो कि आप इतने हाँ। सालों से टीम के अंदर हो, ठीक है, चलो हाँ उसको तो आप छोड़ो, क्या ये कर रहे आपने हैं? हाँ। फाइनल में क्या भंड मारा है वहां पे, क्या उखाड़ लिया आपने, कैप्टेंसी आपसे घंटे की नहीं हुई, ठीक है, परफॉर्मेंस आपसे हम्म। घंटे की नहीं हुई, और उधर ये आके फाइनल था, ये ये कौन फाइनल मतलब, था, ये फाइनल नॉट लाइक जेन्युइन, कि शुरू का कोई मैच था या कुछ। हाँ। ठीक है, परफॉर्मेंस आपसे घंटे की नहीं हुई, उधर आके आप जर्नलिस्ट पे चढ़ाई कर रहे हो कि आप लोगों का कसूर है, या आप लोग जो हो ना प्लेयर को जो है ना इस तरह कर दे रहे हो, डोमेस्टिक खेलने दो, खेलने दो। और बंदा इनसे कहे तूने अगर खेल रही है भाई तो खुद वैसे डोमेस्टिक एक, खेलो। मुझे बताएं किस बेसिस पे इफ्तिखार को फाइनल के लिए कैप्टन बनाया था? सीनियरिटी? अच्छा हाँ ये सीनियोरिटी, क्योंकि वो रिजवान वगैरह तो चले गए थे ना हाँ तो और कौन टेस्ट। टीम में था? कोई और केपेबल, लिटरली कोई केपेबल बंदा नहीं था? अच्छा सीनियरिटी मेरा नहीं ख्याल। बात की है, मतलब उधर देखें तो उन्होंने हारिस को कैप्टन बना दिया था, पता नहीं स्टैलियंस का, ठीक है, हाँ हालांकि हाँ हाँ। वो सीनियर थे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने इफ्तिखार को बनाया। चले मानते हैं पहले रिजवान थे, लेकिन डेफिनेटली वो प्लेयर्स थे मार्कोल के पास जो कि कैप्टेंसी कर सकते थे। मेरे ख्याल में कर सकते थे। हाँ। क्योंकि एट दिस पॉइंट मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई मतलब आपको कोई वो चाहिए कि कोई ऐसा कैप्टन जो टूर्नामेंट जितवाए, आपको ग्रूम करना था, क्योंकि टूर्नामेंट का हम्म। पर्पस ये होता है ना कि ग्रूमिंग करनी है हमने प्लेयर्स की, इंडिविजुअली एज ए कैप्टन। फिर आप हाँ। 40 साल का एक बंदा ला रहे हो, उसको आप कैप्टन लगा रहे हो, ठीक है, हम्म। उसने वैसे खेलना है 60 साल तक, ठीक है, वो बैठा हुआ है। समझ नहीं आती इनकी मतलब पुलिस की मतलब चाहते क्या हैं, एक जगह कुछ करते हैं, एक जगह कुछ करते हैं ये लोग। तो बाकी अगर इनके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे फ़खर जमान है जो कि जिनको कि हम समझते हैं कि हमारे जो है ना बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर हैं, मतलब हाँ arguably। इनकी भी अगर देखें तो 5 मैचेस के अंदर 176 स्कोर है, 35.20 इनकी एवरेज है, और इनका स्ट्राइक रेट जो है दैट इज़ 90.72, तो इनके स्टैंडर्ड्स के लिहाज से तो काफ़ी बिलो पार टूर्नामेंट था, सही है। एग्जैक्टली। तो अब वंस अगेन ये नेक्स्ट जो भी आएगा हमारा सीरीज बायलेटरल सीरीज जो भी टूर्नामेंट आते हैं उसमें 90% चांस है कि दोनों टीम में होंगे, इफ्तिखार भी और फ़खर जमान भी, ठीक है। फखर तो अब होगा, फखर तो चलो इफ्तिखार भी जरूरत है, इफ्तिखार भी बट आई होएगा, मैं वेट कर नीड अ। रहा हूँ कि इफ्तिखार को डालें ताकि मैं इनसे क्वेश्चन कर सकूं कि भाई किस बेस पे डाला है, ठीक है, क्योंकि होना इन दोनों ने है, मुझे पता है इस चीज़ का। चलो फखर यार, फिर भी मैं कहती हूँ आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद फखर। आई समटाइम्स थिंक कि वो कर सकता है कुछ हमारे लिए, बट इफ्तिखार मेक्स जीरो सेंस टू मी। वी हैव सो मेनी मोर पोटेंशियली गुड प्लेयर्स हु कैन बी लाइक प्लेइंग फॉर अस। तो अच्छा जी, विनर्स। ठीक है, तो ये अब हमारे शेडी जी हैं, सही है, बैग इन्होंने अच्छा अपना फेंका मैं। अच्छा, वो जो है ना देखिए अच्छा। कुदरत का निजाम है, जीत गए हैं। अच्छा।
जब मेरा ये क्वेश्चन, एक मेरी इससे राइज आती है एक हमेशा, शादाब मेक्स फॉर अ गुड कैप्टन, let's be honest, like with Islamabad United we've seen, now with Panthers, ठीक है, but what, how do you rank him as a player? I mean, we've seen कि internationally, for over a year, maybe even two, he has been completely off his form, ठीक है, which gives अच्छा, जिस पे मेरा ये सवाल है कि डज, अगर ये जो भी, अब हमारे पास कैप्टन कोई नहीं है, बाबर आजम ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो डू यू थिंक कि अगर शादाब को आगे देनी चाहिए कि नहीं, और डू यू थिंक कि रिजवान वुड मेक फॉर अ बेटर कैप्टन, बिकॉज आई थिंक रिजवान की भी अच्छी परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन। अच्छा, अगर मेरे से सवाल किया ना ये वाला, फराज आप बाद में बता हाँ। सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एज अ कैप्टन राइट नाउ रिजवान इज़ अ बेटर ऑप्शन। सही है, हम्म। बेटर ऑप्शन, नॉट द बेस्ट ऑप्शन। नॉट द बेस्ट बिकॉज क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो तीन चार प्लेयर्स हैं ना, रिजवान हो गया, शादाब हो गया, बाबर हो गया, शहीन हो गया, आई वॉन्ट समवन एल्स, क्योंकि ये ना एक चार पावर ब्लॉक्स बन चुके हैं टीम के अंदर। और जब एक हम्म। आपका, तो एक कह लें कि ना चाहते भी एक राइवलरी आ जाती होती है। सही है, और वो टीम में इस टाइम वो आ चुकी हुई है। और यस। हमारी सिचुएशन ये है कि टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तो ये उल्टा मजीद काम खराब होएगा। तो आइडियली आई वुड वांट शादाब समवन। ने अपना भी ब्लॉग बनाया होगा, रिजवान की तो शायद मुझे लगता है, लेकिन शादाब का नहीं मुझे पता। इन सबके अपने ब्लॉग्स हैं। रिजवान साहब जो है ना, मेरे ख्याल से टीवी पे प्रेजेंट करते हैं कि वो शरीफ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। वो भी उनकी भी अच्छी नहीं नहीं, खासी वो बड़े क्लेवर बंदे हैं, वो ऊपर ऊपर से इस्लाम इस्लाम करते हैं, अंदर से बड़े तेज हैं वो भी, ठीक है। आगे दर्ज तो देते हैं इस्लाम का पीछे मुझे से। सिर्फ मुझसे ये और रिजवान से सिर्फ एक इशू है कि रिजवान ने ना फिर वो चेंजिंग रूम का वो कल्चर बना देना जो कि इंजमाम और फीदी करते थे, जो सब पे जो है ना रिलीजन इम्पोज करना, याद है दानिश कनेरी और किस किस को नहीं उन्होंने जबरदस्तियां की थी। से मुझे ये है कि बिकॉज ही सीम्स टू ओवर प्रीच रिलीजन, ठीक है। वैसे ही मेक फॉर अ गुड कैप्टन, बट आपका पॉइंट भी अच्छा है, जिस तरह हमने शान मसूद को आउट, लिटरली उस वो बिल्कुल न्यूट्रल बंदा आपने रख दिया ना, विच इज फेयरिंग वेल फॉर अस, आई थिंक इट इज गुड फॉर अस। इसी तरह कोई ऐसे ही एकदम से कोई बंदा जो है ना, आप किसी और को बना दो जिसकी कोई लॉबी शॉबी ना हो। वो आगा सलमान और फखर जमान का भी नाम तो आगे वैसे सलमान उन्होंने का लिया उसको है। आगा का नहीं, तो सीन है, उसको आई बना थिंक सकते हैं। आगा वुड बी पोटेंशियली गुड चॉइस। फखर का मुझे नहीं पता। नहीं, फखर फखर जमान कैप्टन कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है। फखर जमान तो कैप्टनसी बिल्कुल मटेरियल, आई अब वो डोंट थिंक थोड़ी ही जो हैज दैट ऑरा, या क्या कह सकते हैं। आगा सलमान में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हम्म, है, शो कर सकता है। फखर इज मोर ऑफ, इज अ वेरी क्वाइट सॉर्ट ऑफ, मुझे उससे वाइब आती है। हाँ मगर उसने भी वो जो इनका कंसंट्रेशन कैंप या कनेक्ट पता नहीं जो भी कैंप, उसमें उसने मोहसिन नकवी को बोले कि आप अपने इर्द गिर्द भी सर्जरी करें, हमेशा आप प्लेयर्स की सर्जरी करते हैं। किसने ये किसने सिर्फ कहा है? ये फखर जमान नहीं का है, ये न्यूज़ वैसे फिर लास्ट, करेक्ट ये लास्ट एडिशन वीक लेजेंड की है। है। है तो वो पठान ना फिर फखर, उसने तो फिर कह देना था जो मुंह में आता है। तो उसका पॉइंट ये था कि वो लीग खेलने एनओसी मिली, लीग खेलने गया, फिर एकदम इन्होंने फिटनेस कैंप के लिए बुला लिया। हम्म। तो इसी पॉइंट पे अच्छा, उसने उसका ये काफी पॉइंट था, उसने वैसे बता वैसे ऑर्गेनाइजेशन दो नहीं है बार ना, दो आप बार लीग प्लेयर्स का को इन्होंने इधर से मिला। उधर घुमाते रहते हो, सारा कुछ है उनको जो है। हाँ। उसको बेसिकली दो बार लीग्स का एनओसी मिला है। दोनों बार वो हाँ। उसने ट्रेवल किया है। एक बार मेरे ख्याल से हम्म। सीपीएल का था और एक किसी और लीग का था। दोनों बार उसने ट्रेवल किया है, वहां पहुंचा है, वहां हम्म। पहुंच के उसको वापस आना पड़ा है। पहुंच के उसके बाद गोल आ गई। हो गया होगा एनओसी। ये तो ज्यादती है ना फिर। हाँ। इस पे तब चढ़ना बनता है। मतलब हाँ। आपने हाँ। कोई बेगैरती करनी है, आप यहीं पे कर दो पाकिस्तान में। ये क्या कि आप पहले उसको वहां भेज रहे हो, फिर वहां भेजने के बाद कह रहे हो कि आ जाओ वापस अब। हम्म। का बोलना बनता है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टूवर्ड्स द कैप्टेंसी टॉक, तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, शादाब, रिजवान, शहीन, बाबर। लेकिन गिवन द करंट स्टेट हमारे पास कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आई थिंक रिजवान वुड बी अ बेटर वायबल ऑप्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट फराज, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? अ- अगर शादाब और रिजवान की उसमें पूछे फिर तो आई गेस रिजवान ही थोड़ा मेच्योर वगैरह लगते हैं। ऑल्दो शादाब के पिछले सीजन्स जो पीएसएल और जैसे अभी इसमें वो दोनों टीम्स के साथ जीते, बट मेन चीज़ है
की बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी अभी पिछले एक आध साल से काफी वीक है, हाँ। डाउन, और उसने खुद भी कहा है कि मैं 5 डे या 4 डे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ डोमेस्टिकली। हम्म। तो आई गेस फ्यूचर के लिए मे बी, बट अभी के लिए आई गेस रिजवान ही बेटर ऑप्शन है। हम्म। बट आप कोई रिस्क फ्री लेने तो आप किसी आगा सलमान को बना दें, कोई इतना टीम, मतलब कोई वैसे उस तरह ऑनेस्टली वो। द मोर कहते हैं मतलब कि क्या कहते हैं, रीजनेबल ऑप्शन तो यही होगी कि आप बिल्कुल ही इन बिग फोर बॉयज हम्म, से साइड पे ओके कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई थॉट हैविंग शान मसूद अपॉइंटेड एज टेस्ट कैप्टन वाज अ ग्रेट डिसीजन। वो हम्म, अच्छा कैप्टन भी है, रीजनेबल कैप्टन भी है, और प्लस वो उसकी किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है। इज नॉट द सॉर्ट ऑफ यस। पर्सन हु वुड एंगेज इन पॉलिटिक्स, ठीक है, विद इन द टीम। बिल्कुल न्यूट्रल बंदा है वो। और मुझे तो लगता है उसको आप ओडीआई में भी, मतलब वो शान मसूद ने अपनी ओवर द इयर्स काफी गेम चेंज किए, वो सिचुएशन हाँ। के हिसाब से खेलते हैं। अनलाइक काफी हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हाँ, अपनी स्टैट्स को और वो लेके खेलते हैं। शान मसूद काफी सेल्फलेस सा प्लेयर है, तो हमें भी एग्जैक्टली। इसी तरह का कोई प्लेयर ढूंढना चाहिए Also, ओडीआई टीम। now I think it's high time Babar is solely focus on his batting. ठीक है, आई मीन अब इनके पास कोई नहीं है, अब 2 दफा कैप्टनसी कर ली है, दिल भर गया है, अब करें अपनी। बिकॉज अगर जो उनकी अभी लेगेसी है ना, वो फिर रहेगी नहीं। जी। इफ ही डजेंट लाइक डू एनीथिंग अबाउट इट, फिर वो he'll बी फॉरगेटेबल, वेरी फॉरगेटेबल। कल को कोई कोट नहीं करेगा कि यार एक टाइम पे बाबर भी होता था हमारे पास, जिस तरह हम कभी किसी किसी की बात करते हैं, किसी बैट्समैन की, कभी मिसबाह की, किसी की भी। आई मतलब कि फिर वो आपकी वो लेगेसी नहीं रहेगी के जी। अब जो हम रेफर करते हैं कि जी मास्टर है कवर ड्राइव का, तो ये तो वो तो जो है ना, वो फिर वो एक बस मास्टर ही शायद कभी इस एरा के कोई जिंदा रहा तो याद रहेगा, तो नहीं तो ना सही। हाँ। Okay, so Namra, I think we should have a separate podcast on this topic of captaincy. It's a topic within itself. So we are running out of time for this one. So हाँ। let's come towards the closure of this podcast. So हमने कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर क्रक्स सकते क्या है, कि क्रक्स क्या है कि वाज इट अ यूजफुल टूर्नामेंट और नॉट? मेरे ख्याल में बस एक पॉजिटिव हसनैन की रिकवरी थी, जिस तरह हम्म। से वो रिकवर करके अपने ओन पे और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी। और एक और कह सकते हैं कि चलो फैसलाबाद में क्रिकेट हो गई, हम्म। बट ज्यादा नेगेटिव यही है कि इसमें काफी फजूल का थोड़ा पैसा इन्होंने इंजेक्ट ऐसा किया है। लगा, हाँ। आप कहीं बट और मेरे ख्याल से इसकी यूजफुल टाइमिंग एरिया पे हो काफी जाता खराब फिर। थी। ये इसकी टाइमिंग आई बेहतर थिंक इट्स थी। लाइक अ लेस ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ पीएसएल, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करते थे हाँ। हम्म। स्केड्यूल। मतलब अभी टेस्ट सीरीज थी, इससे पहले आपने ये करवा दिया है, ठीक है। नॉट डेट हम्म। कि आपने कोई प्लेयर पिक किए हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज के लिए। तो मतलब टाइमिंग के लिहाज से और इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट वर मतलब पुट इन, स्पेशली मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो हाँ। वो जस्टिफाई नहीं करते। सो विद दैट बीइंग सेड, we'll come towards the closure of this podcast, and the next podcast we would discuss the preview or talk about the preview of the England versus Pakistan Test series. So until then, goodbye from the team Sports Panther. So see you guys in the next one.